In the second entry, out of 40,000 rupees, 20,000 has been taken in cash and 20,000 on credit from Kishan. So for the cash entry, it will be purchased to cash, 20,000, 20,000. For the credit entry, which means when the purchase has been made on credit, udhar mein jo purchase hua hai, then the entry is purchase account to the name of the person, the name of the supplier. So purchase account to Kishan account, 20,000, 20,000. These are two separate entries. But if you want to make a single compound entry, then you can also write one single entry, which will be combining these two. Combining these two, we can write purchase account debit, the total purchase 40,000, and then these two can be written together to cash account and to Kishan account, which means that the total purchase is 40,000 rupees. Out of 40,000, 20,000 has been made in cash, and the balance 20,000 has been taken on credit from Kishan. All right. Now, number 3 is similar. So in number 3, sales are being made, and the total sales is worth rupees 60,000. Out of which 30,000 is cash sales, and the balance 30,000 is credit sales to Suresh or Subhash, whatever. So again, we will do it in similar way. The entry for cash sales is cash account debit to sales account, 30,000, 30,000. And the second entry will be the name of the buyer, Suresh or Subhash, whatever the name is, Suresh account debit to sales account, another 30,000. So this 30,000, this is cash sales and this is credit sales. Or if you want to make a single entry, if you want to make a single journal entry combining these two, then we will say cash account. This part and this part will be, both will be taken as debit. So cash account will be debited for 30,000. Suresh account will also be debited for 30,000. And on credit, you will add these two. So to sales account, 30 plus 30 is 60,000. शिवांश क्वेश्चन देखो जरा जो ग्रुप में है. So in question number 3, when the cash sales is written as cash account to sales account, cash is coming in, and if it is credit sale, then the journal entry is Suresh account to sales account, because in credit sale cash is not coming in. Cash is not coming in. If we combine these two, we will get cash account debit, Suresh account debit to sales account. Look at journal entry number 4. Now, in journal entry number 4, the question is, received rupees 27,000 from Subhash in full settlement. Achha, sorry, this person is Subhash. So this person is Subhash. सर वो जो सुभाष एंट्री वापस ली उससे पहले एक और है किशन को देने वाला. Okay. Sorry, we paid rupees 19,000 to Kishan in full settlement. Paid rupees 19,000 to Kishan in full settlement. Okay, so it means that I am paying to Kishan. When I am paying to Kishan, my cash is going out. When I am paying to Kishan, my cash is going out. So cash will not be debited, cash will be credited.
So the entry should be Kishan account debit to cash account. Now how much cash is going out? 19,000. Kishan account, please note, this is an entry of full settlement. The word full settlement means that किशन के अकाउंट को क्लोज किया जाएगा. किशन को 20,000 रुपीज देना है, तो किशन का अकाउंट 20,000 रुपीज ही हम लोग लिखेंगे. किशन को 20,000 रुपीज देना है, उसे 20,000 रुपीज ही यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज किशन को 20,000 देके पूरा क्लियर कर रहे हैं हम लोग. लेकिन हम लोग उसे कैश 19,000 दे रहे हैं और बाकी 1,000 हम लोग नहीं देंगे उसको. फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसे 20,000 रुपए देने थे एंड वी टोल्ड हिम कि 19,000 लो और सेटल करो मामला. सो 1,000 रुपीज वी आर सॉर्ट ऑफ टेकिंग डिस्काउंट. डेबिट तो वो होता है ना जो कैश बाहर जाता है, निकल, जो कैश गोज आउट होता है. नहीं, कैश को डेबिट करोगे जब कैश अंदर आएगा. कैश डेबिट व्हाट कम्स इन केस ऑफ कैश. In case of cash, किशन अकाउंट को रिवर्स करना है. इफ यू लुक एट द प्रीवियस एंट्री ऑफ किशन अकाउंट, तो उसमें किशन अकाउंट क्रेडिट में था. हम किशन को जब पे करेंगे तो किशन अकाउंट को पे करते वक्त किशन का एंट्री उल्टा हो जाएगा, किशन डेबिट हो जाएगा. कैश मेरा जा रहा है, आई एम पेइंग कैश, कैश इज गोइंग आउट, सो कैश अकाउंट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड 19,000. And along with cash, I am enjoying a discount of rupees 1,000. So discount received will also be on the credit side 1,000. So this is the total debit 20,000 and this is the total credit 20,000. Now look at journal number 5. Entry number 5. Okay, please note कि हम लोगों ने सुभाष को सेल किया था 30,000 रुपीज का माल. So we have to take 30,000 rupees from Subhash. But Subhash is paying only 27,000. Subhash is paying us 27,000 rupees. So we are getting cash of 27,000 rupees. So cash account debit 27,000. To Subhash. सुभाष के अकाउंट को क्लोज करना है. द वर्ड फुल सेटलमेंट का मतलब है सुभाष के अकाउंट में और कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा. सुभाष अब और फ्यूचर में कुछ नहीं देगा. सुभाष के अकाउंट को क्लोज करना है. इसका मतलब यहाँ पे जो भी इसका डेबिट है, जितना भी इसका डेबिट का फिगर है, वो सेम फिगर क्रेडिट में लगाना पड़ेगा. इसको बोलते हैं एंट्री को क्लोज करना. जितना उसका डेबिट है या माइनस है उतना ही प्लस करना होगा, उतना ही क्रेडिट करना होगा. तो इन दैट केस तुम देखो ये मैच नहीं करेगा. वी हैव रिसीव्ड कैश 27,000 रुपीज, दिस इज द डेबिट अमाउंट. सुभाष के एंट्री को हम लोग क्लोज कर रहे हैं 30,000 रुपीज, दिस इज द क्रेडिट फिगर. दोनों इक्वल नहीं है, ये 3,000 कम है, तो यहाँ पे 3,000 लिखो एंड लिखो डिस्काउंट अलाउड. अकाउंट debit, which means that we are allowing discount or giving discount to Subhash. We are giving 3,000 rupees discount to Subhash and Subhash is paying us only 27,000. So this is a sort of a loss for us because the word full settlement is written there. Means Subhash will not pay anything in the future. Now go to number 6. Number 6 का एंट्री बार पढ़ो ना मेहुल. हाँ, एंट्री क्या है नंबर 6 का? हम बोलेगी क्या क्वेश्चन क्या था वो बोल रहे हैं. क्वेश्चन पेड वेजेस 600 and salary is 1,500. wages 600 and salary
1500. So wages to cash, you can do it separately. Wages account debit to cash account, which is जो भी amount है लिख दो, and उसके बाद you can write salaries account or salaries account debit to cash account and write the figure. or you can do it एक साथ. अगर एक साथ करोगे, you can also do a single entry, which is wages and salaries account debit. इसको ऐड करके जो टोटल आ रहा है वो लिख दो टू कैश अकाउंट. अगेन जो टोटल आ रहा है वो लिख दो. Okay. Then number 7 is purchased a machine from Karthik for rupees 600 on credit. Entry number 7. आदित्य इसका आंसर बोलो. Sir, I'll just join in 10 minutes. हाँ, what is the answer of number 7? Look at the question and tell me the answer. अच्छा तो चला गया. Avirup, tell me the answer of number 7. Avirup, tell me the answer of number 7. Yes, sir. Purchased a machine rupees 600 from Karthik on credit. So what will be the journal entry? Anjali's answer बोलो please. अच्छा Urvi, have you done it? What is your answer, Urvi? Urvi, what is your answer? Wait. अच्छा मेहुल बोलो. Machinery account to Karthik account. Here we are purchasing a machinery. We are not purchasing a good. If we are not purchasing goods, then purchase account will not come. जब मशीन परचेस करोगे तो मशीनरी अकाउंट लिखोगे. मशीन इज बीइंग परचेज और मशीनरी अकाउंट होगा. इट इज नॉट कैश परचेज, सो टू कैश अकाउंट नहीं लिखोगे. टू कैश अकाउंट नहीं लिखोगे because it is not cash purchase. It is credit purchase. When you are buying something on credit, then you write the name of the creditor. So the amount is 600. Look at entry number 8. Provide depreciation on building at 10% per annum. Okay. इसका एंट्री क्यों मेहुल? विवेक एंड मेहुल तुम लोग क्यों ये? सर समझ में नहीं तो नहीं आया, पर मेरे ख्याल से चाहिए
depreciation account to cash account. अच्छा, जो बिल्डिंग वो लाया था, वो किसका अमाउंट क्या था बिल्डिंग का? 60,000. क्वेश्चन में देखो 60,000 था। हाँ 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000. 6,000 राइट। 10 by 100 into 60,000, या सिंपली इसमें से एक जीरो कम कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? हटा देना. डेप्रिसिएशन मीन्स fall in value. Decrease. Depreciation means fall in value. Okay, depreciation means fall in value. हर चीज का, कई सारी चीज का वैल्यू फॉल होता है। तुम आज कोई मशीन खरीदोगे तो उसका वैल्यू हर साल फॉल होता जाएगा, बिकॉज वो पुराना हो रहा है चीज। यहाँ बिल्डिंग हो सकता है उसने नया नया खरीदा हो, बट उसके बाद एक साल बाद उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, because maybe the building has lost some of its shine, or maybe property का value fall हो गया है for any reason। तो depreciation का मतलब है the value has fallen, but इसमें cash मेरा जा नहीं रहा, ये loss तो है, but this loss is not because of outflow of cash। वो किसी को cash pay नहीं कर रहा, उसके पास जो बिल्डिंग था उसका बस वैल्यू कम हो गया है। इसका मतलब है वो बिल्डिंग के वैल्यू को कम करेगा। तो इसका एंट्री होगा, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डेप्रिसिएशन द एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बिल्डिंग अकाउंट 6,000। दिस मीन्स दैट there has been a loss or depreciation of rupees 6,000. Loss is always debited, and the value of building has decreased. उसके पास पहले 60,000 का बिल्डिंग था, अब वो बिल्डिंग 54,000 का रह गया है। So there has been a fall in the value of building by 6,000. This fall must be noted by crediting the building account. Like when we had purchased the building, then building account was debited. When building comes in, building was debited. Here building is going out. The building is not being sold, but the value of the building is falling. So 6,000 rupees of the value has been cut off. So when you are cutting off the value of building or decreasing the value of building, you will write building account on the credit side. Narration will be being depreciation recorded against building at the rate 10%. Being depreciation recorded against building at the rate 10%. Now for ledger, let me turn to some number. You go to, wait, हम तुम लोग को एक sum भेज रहे हैं. It will not be possible for you to understand ledger. So we will write here in the books of ... because we do not know the name of the proprietor. विलियम इसका क्लाइंट है, ये खुद विलियम नहीं है, तो यहाँ इन द बुक्स ऑफ विलियम मत लिखना। विलियम इस प्रोप्राइटर का क्लाइंट है, ये खुद विलियम नहीं है। इसका फर्स्ट एंट्री देखो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा। फिर जनवरी 10th को देखो, जनवरी 10th इज सोल्ड गुड्स टू विलियम 10,000, sold goods to William 10,000. Entry will not be cash to sales. When it is written sold goods to William, इसका मतलब है कि विलियम को क्रेडिट पे सेल किया गया है। अगर कैश सेल्स होता
तो सिर्फ लिखा रहता सोल्ड गुड्स ऑन कैश, पर्सन का नाम नहीं लिखा रहता, सो इट इज क्रेडिट सेल। सो एंट्री विल अगर बी जर्नल में फर्स्ट एंट्री नहीं ना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस वाला? नहीं, वो नहीं, वो लेजर में काम आएगा, उसमें कोई जनरल एंट्री नहीं होगा। विलियम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सो वी हैव सोल्ड 10,000 रुपीज ऑफ गुड्स टू विलियम। Next entry is when 12th January received cash from him, 10,000. So January 12th received cash, cash is coming in, so cash account debit from him, so to William account. Again 12,000, 12,000. Then next entry, January 15th, goods returned by him 1,000. So January 15th, goods returned by him 1,000. ये वाला जो एंट्री था, when we had sold him goods, now he is returning us goods of 1,000. तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो। इस एंट्री में हमने उसे गुड्स सेल किया था, अब उसमें से 10,000 में से 1,000 वो रिटर्न कर रहा है। तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो। रिवर्स करते वक्त सेल्स को ऊपर लिखोगे, विलियम को नीचे, लेकिन हम जब सेल्स को ऊपर लिखते हैं तो हम लोग सिर्फ सेल्स नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं सेल्स रिटर्न। वी राइट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट 1,000, 1,000. Please note that in the future, sales return account will be known as, ये अभी से देख लो, sales return account के बदले you will write return inward account. Just लिख के रखो अभी, that sales return account is also known as return inward account. Okay, इसके बाद कोई एंट्री है? इसके बाद है, हाँ है तो 17th, received check from him, how much? 5,000. Received check from him 5,000. When we are receiving check, we are assuming that we are receiving check and depositing in the bank. We are receiving check and depositing in the bank. So मेरा बैंक अकाउंट को हम बढ़ा देंगे. So on 17 January, my bank account will be debited because I have received a check. So my bank account goes up 5,000. And who has given me this check? William. Jan 28 पे तो एंट्री आएगा नहीं क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट भी नहीं रखा और दे रखा है चेक। बिल्कुल आएगा। वो डेट क्या है? What is the date? 28. 28. So on 28, the bank tells that ये चेक डिसऑनर हो गया है। इसका मतलब है कि क्या मेरे बैंक में पैसा आया है? No. तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने एंट्री किया था, ये एंट्री को मुझे अब वापस से कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तुम समझो ना कि तुमको मैंने 2,000 रुपीज का नोट दिया, तो तुमने अपने खाते में लिख लिया कि 2,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम रितेश। अब तुम्हें बाद में पता चला कि वो नोट फालतू है, तो तुम क्या करोगे? तुम उस नोट को वापस से काटोगे और लिखोगे 2,000 रुपीज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रितेश। तो वैसे ही यहाँ पे करना है,
हमने 17 को नोट किया था कि बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है 5000। अब तुम लिखोगे कि नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, मतलब इस अकाउंट को मुझे वापस से रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए मैंने जो बैंक को ऊपर कर दिया था, डेबिट कर दिया था, उसे वापस क्रेडिट करना है, और विलियम को जो मैंने नीचे लिख दिया था वापस से उसे ऊपर लिखना है। तो इसका रिवर्स एंट्री लिखोगे, विलियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये रिवर्स लिखने से क्या होगा, ये रिवर्स लिखने से मेरा ये दोनों पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये रिवर्स लिखने से मेरा ये दोनों पॉइंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये इसमें आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा, जिसमें लिखा हुआ है चेक वाज डिसऑनर्ड। 17 को चेक मिला, हमने सोचा बैंक में पैसा आ गया, और विलियम का हमने खाता में से नाम काट दिया, बैंक टू विलियम। फिर बैंक ने कॉल करके बोला 28 को कि चेक डिसऑनर हो गया है, यानी चेक आपका जाली है, मतलब सॉर्ट ऑफ डिसऑनर हो गया, मतलब विलियम के चेक बाउंस हो गया बेसिकली। तो इसलिए हम लोग इस एंट्री को पूरा रिवर्स कर देंगे, विलियम को वापस से डेबिट कर देंगे, बैंक को वापस से नीचे कर देंगे, ताकि ये एंट्री आपस में नलीफाई हो जाए, जैसे कि हमने एंट्री डाला ही नहीं था। और इसके बाद है लास्ट एंट्री है शायद है, अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम हिम कितना है, 5000 है ना, 5000। So on the last day, he is giving us cash. So you write down the जो last entry है 30th है जो भी है, कैश मिल रहा है तो बस बेसिक एंट्री होगा ये, कैश अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट 5000 कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश हमें मिल रहा है और कैश हमें विलियम दे रहा है, इसलिए टू विलियम अकाउंट। देखो ये जर्नल ठीक है, अब इस जर्नल को देख के हमें लेजर बनाना है। अब लेजर कैसे बनाएंगे, मेरे को तो बार बार देखना पड़ेगा ये। अच्छा रुको, लेजर का मतलब है कि हम लोग, जो प्रोप्राइटर है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट बना रहा है। लेजर का मतलब है कि जो प्रोप्राइटर है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट बना रहा है, यानी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम, आदमी का हिसाब रख रहा है। लेजर आज थोड़ा सा ही समझ में आएगा, ज्यादा समझ नहीं आएगा, बिकॉज उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट हम लोग लेजर करेंगे। ये पार्ट मुझे रब करना पड़ेगा, तुम लोग मेरे को बताते रहना जर्नल क्या था। तो लेजर का फॉर्मेट थोड़ा सा वाइड है, सो यू नीड अ वाइडर पार्ट ऑफ द पेज। क्या तो कॉपी को घुमा दो, या फिर पहले देख लो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, और यहाँ पे लेजर। लेजर में दो साइड होता है, पहले लिखोगे, हाँ है तो 9 में और भी चीज है, ट्रायल बैलेंस भी है, कैश बुक है, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, उसमें जैसे एलएफ था इसमें जेएफ है, जर्नल फोलियो, अमाउंट, अब ये चार वापस से लिखोगे इस साइड में, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट का कॉलम थोड़ा सा रखना, इतना बड़ा, पर्टिकुलर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा कॉलम सबसे वाइड पर्टिकुलर्स होगा। जेएफ का कॉलम एकदम छोटा सा हो, इसमें लिखना नहीं पड़ता है, एकदम छोटा सा कॉलम दो, और अमाउंट में बस अमाउंट के हिसाब से जगह छोड़ दो। यहाँ पे भी वही है, डेट के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक जगह दो, पर्टिकुलर्स के लिए बहुत ज्यादा जगह दो, जेएफ के लिए एकदम छोटा सा जगह, और अमाउंट के लिए थोड़ा, और ऊपर में एक लाइन टानोगे। तो ये जो पार्ट है, ये तुम्हारा मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट में हम लोग कभी कभी डबल लाइन देते हैं, यानी तुम एक और स्केल से एक और लाइन दे सकते हो, डबल लाइन दे सकते हो। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये चार जन है, राइट साइड में भी ये 4 कॉलम्स है। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, ऊपर लिखोगे डीआर,
and the right side is called credit side. So you will write CR at the right hand margin and DR at the left hand margin. देखो पहले ये फॉर्मेट बना लो, और अगर तुम्हारा कॉपी छोटा है तो कॉपी को घुमा के बनाओ ताकि ये फिट हो. बना के लेट मी नो. ओके, हम लोग को बनाना है विलियम अकाउंट. याद रखो, हम लोग को जो बनाना है, जो अकाउंट बनाना है वो है विलियम अकाउंट या विलियम्स अकाउंट. तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग विलियम्स अकाउंट. अब अपने जर्नल में जाओ जरा. पहला जर्नल एंट्री पढ़ो विवेक. जो फर्स्ट जर्नल दिखाए थे हम, वो क्या था? अच्छा विवेक तो पढ़ नहीं सकते. अरे क्या नहीं याद, कॉपी में देखो ना. फर्स्ट का था जैन हाँ. 10 विलियम्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 10,000. विलियम टू सेल्स जनवरी 10th. हाँ, विलियम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो उस जर्नल एंट्री में विलियम डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? उस जर्नल एंट्री में विलियम डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? द जर्नल इज विलियम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ना. तो विलियम डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है? विलियम अकाउंट डेबिट है ना, तो विलियम डेबिट हुआ है. तो तुम डेबिट कॉलम में आओगे और यहां पे लिखोगे, डेट दे दो. डेट क्या है? 10th है ना, 10th जैन. अब विलियम किसके अगेंस्ट डेबिट हुआ उसका नाम लिख लो. द जर्नल एंट्री इज विलियम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो यहाँ पे लिखो टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट कितना है? 10,000. रीड द नेक्स्ट जर्नल एंट्री मोड. 12 जैन को कैश अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट 12,000. कैश अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट. यहाँ विलियम जो है वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट. विलियम नीचे आया है तो विलियम क्रेडिट हुआ है. तो तुम क्रेडिट साइड में जाओ, यहाँ पे लिखो 12 जैन, और इस लाइन के नीचे लिखना. इस लाइन के यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखना, नीचे लिखना. 12 जैन कैश अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट. तो विलियम तो क्रेडिट हुआ है. अब विलियम किसके अगेंस्ट क्रेडिट हुआ है? कैश के अगेंस्ट क्रेडिट हुआ है. कैश अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट. तो यहाँ पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट. हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं और इस साइड में बाय लिखते हैं. बाय कैश अकाउंट लिखो और अमाउंट कितना दिया है? 12,000. तो 12,000 लिखो. इसके बाद है नेक्स्ट डेट. नेक्स्ट डेट क्या है बोलो? 15th जैन को सेल्स अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट 1,000. 15 जैन को सेल्स अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट या विलियम टू सेल्स. सेल्स टू विलियम. हाँ, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट मीन्स विलियम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. तो अगेन यू कम टू द क्रेडिट साइड एंड राइट हियर बाय विलियम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसके नाम पे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट. तो सेल्स अकाउंट के नाम पे वो क्रेडिट हो रहा है. तो यहाँ लिखो बाय सेल्स अकाउंट और ये 1,000 है ना, 1,000. सर यहाँ तो सेल्स रिटर्न आना चाहिए ना. हाँ सॉरी, तो सेल्स अकाउंट क्यों बोल रहे हो? एंट्री क्या था मेरा? जनरल एंट्री था सेल्स रिटर्न अकाउंट. तो यहाँ लिखो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट. इसके बाद 15 जनवरी के बाद नेक्स्ट एंट्री पढ़ो. Jan Journal entry. 17th January bank account debit to William account 5,000. 17 जनवरी. अगेन
बैंक अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब विलियम अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रहा है, तो फिर से क्रेडिट साइड में जाओ, डेट लिखो, यहाँ पे बाय विलियम अकाउंट क्रेडिट तो हो रहा है, बट किसके नाम पे हो रहा है, किसके नाम पे क्रेडिट हो रहा है वो, बैंक के, बिकॉज द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट, सो बाय बैंक अकाउंट लिखो, ये कितना है 5000। हाँ सर। नेक्स्ट जर्नल एंट्री 28 जैन को विलियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट 5000। 28 को विलियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे इस एंट्री में विलियम अकाउंट इज डेबिट, सो विल कम टू द डेबिट साइड, विलियम अकाउंट डेबिट विल कम टू द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, यानी विलियम अकाउंट किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, सो राइट टू बैंक अकाउंट और 5000 लिखो। Then we have the last entry, which is cash account debit to William account. Last entry का date क्या है, 31। so come to 31 January. Cash account debit to William account credit, cash account debit to William account credit, so William account will come back to the credit side, और यहाँ पे लिखोगे बाय, हमेशा बाय लिखोगे, यहाँ पे एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू विलियम अकाउंट, तो कैश अकाउंट आएगा बिकॉज कैश के अगेंस्ट विलियम को क्रेडिट किया गया 5000। ओ सॉरी, इसमें एक चीज और आएगा, इसमें जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में एकदम फर्स्ट लाइन क्या था, एक बार रीड करो तो, ओपनिंग बैलेंस। हाँ, क्या था ओपनिंग बैलेंस सर एक सेकंड, 7500। तो इसका मतलब है कि वो तुम सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, वो तुम एकदम जनवरी, यहाँ लिखोगे 1 जनवरी। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है विलियम का पहले से ये हिसाब चल रहा था, यहाँ लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस BF B/F, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब है, नहीं कैपिटल नहीं, इसका मतलब है विलियम तो मेरा पुराना कस्टमर है, ये मेरा विलियम का पुराना हिसाब है, पिछला महीने का हिसाब है, पिछला महीने का 7000 बचा हुआ है, अभी उससे लेना है 7500, इस महीना 7500। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एकदम ऊपर में लिखोगे, इसका मतलब है कि विलियम से 7500 लेना है मेरे को पिछले महीने का, ये ओल्ड बैलेंस है जो अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ओके, ये ओल्ड बैलेंस है जो अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और इस महीना इस महीना ये चीज हुआ है, हमने उसे 10,000 का माल बेचा है, उसने कैश दिया 12,000, फिर उसने 1,000 रिटर्न कर दिया, उसने चेक दिया, फिर चेक कैंसिल हो गया, फिर उसने कैश दिया, तो अब मुझे देखना है कि उसका कितना हिसाब बचा हुआ है। पहले इसको टोटल करो, ये साइड को, पहले का 7,500, फिर 10,000 का उसने माल और खरीदा, 22,500, तो कितना हुआ 17,500, उसमें 5,000 जोड़ो तो हुआ 22,500, यानी 22,500 मेरे को उससे लेना है। अब उसने दिया कितना, उसने 12,000 कैश दिया, 1,000 का सेल रिटर्न हो गया, बैंक चेक दिया 5,000 का, और कैश दिया 5,000, तो टोटल उसने दिया, उसने ज्यादा दे दिया है ना, उसने, इसको हम हटा देते एक बार, उसने मेरे को ज्यादा दे दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखो 23,000,
अच्छा, इसका टोटल था 22,500, तो 500 रुपया अभी एक्स्ट्रा यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 500 लिखो। जो दोनों साइड में जो ज्यादा भारी टोटल होगा, लाइक इस ये छोटा टोटल है, ये वाला साइड का टोटल ज्यादा बड़ा है, तो जिस साइड में बड़ा टोटल आएगा ये टोटल को दोनों जगह लिख दोगे, यहाँ पे भी और वहां पे भी। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, दोनों साइड को टोटल करोगे। हमने देखा कि इस साइड का टोटल आ रहा है 22.5 के और इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 23 के आ रहा है। तो जो हैवियर साइड है, जो हैवियर टोटल है, वो हैवियर टोटल को यहाँ तो लिख ही दोगे, यहाँ भी लिख दोगे, यहाँ तो लिखना ही है, और इस कॉलम में भी लिख दोगे वो हैवी टोटल। और अब जो डिफरेंस था इसके बीच में और इस साइड का टोटल यानी ये, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ लिख दो। अब तुम देखो, अगर हम इसको ऐड करें और उसमें ये ऐड कर दे तो मेरा ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। उसमें कुछ लिखना तो पड़ेगा कि बैलेंस कैरी हाँ, फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। अब ये 500 तो मेरा बैलेंस है ना, मतलब उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे। और ये चीज हमेशा लास्ट डेट पे होगा मंथ का, तो मंथ का लास्ट डेट पे यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, CD मीन्स कैरीड डाउन, टू बैल CD, टू बैलेंस कैरीड डाउन 500, यानी ये 500 हम नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यानी अभी 500 रुपया वो मुझसे पाता है तो वो मुझसे 500 का सामान लेके जा सकता है, समझ गए? तो लेजर में हर मंथ जो बैलेंस बचता है वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जैसे देखो, जो लास्ट मंथ का बैलेंस कैरी डाउन था वो यहाँ पे आ गया, इस महीने के ओपनिंग में आ गया, तो इस मंथ का कैरी डाउन नेक्स्ट मंथ का ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाता है या ब्रॉड डाउन बन जाता है। टिपिकली हम लोग यहाँ इसके बाद एक लाइन और लिखते हैं, वो है यहाँ पे तुम चले जाओ, यहाँ पे अगर 500 आया है यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे लिखो नेक्स्ट मंथ का हेडिंग दो 1 फरवरी। ये इस चीज को जस्ट यहाँ पे लिख दो, सॉरी कहाँ पे लिखे हम, 1 फरवरी, और लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन CD और यहाँ पे BD 500। ये शो करने के लिए कि जिस बैलेंस पे 31 को खत्म हुआ था जनवरी का लेजर, उसी बैलेंस पे फरवरी का लेजर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे CD लिखते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ पे यहाँ पे चला जाता है। अभी फिलहाल इतना ही समझो, अगर थोड़ा बहुत चीज समझ नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेजर थोड़ा टफ है, हम लोग का जर्नल भी और करना है तो हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, बट आई बिलीव कि हम लोग जैसे जैसे और करेंगे तो वी गेट मोर एंड मोर क्लियर।